Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss another interesting part related to the excellent general financial rules, procurement of goods and services. And in this part, I will discuss Rule 151 to 160. It is the latest one, and also you will get 20 very exciting MCQs according to the latest pattern of question is coming in the examination. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Please go through my video up to the end. You can get complete information. Very interesting MCQs are there. Again, it is part 2, excellent general financial rules related to the procurement of goods and services, and I will cover rule 151 to 160. You see my contact WhatsApp number 8327782034. My Telegram channel link t.me/BAPI2034. Please join it so that you can up to date yourself for my upcoming videos. Now rule 151, it is debarment from bidding. First one, you remember the rule. Now question is coming related to the rule. So rule 151, debarment from bidding. In this rule we can get information that on which conditions the bidders are prevented from participation in procurement process. फर्स्ट वन, बीट आई को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए बीडर शैल बी debarred if he has been convicted of an offense. At what conditions the bidder shall be debarred or the bidder shall be prevented from participation in the procurement process? First two, very important one. In these two conditions, actually the bidder will be debarred for 3 years. Clear? First one, Prevention of Corruption Act 1988. Under the Prevention of Corruption Act 1988, one condition. Second one, आप ले जाइए IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इसमें क्या है, बिडर जो गुड्स सप्लाई कर रहा है उसमें क्या है, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, and also goods are harmful and detrimental to the health of the public, causing a threat to public health. तो ये सब कंडीशन में बिडर्स को 3 years के लिए डिबेयर कर दिया जाता है. In these two conditions, the bidders will be debarred or the bidders will be prevented from participation in procurement process for 3 years. ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड सेकेंड जो है, जो आईपीसी लगा है, जो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से जो चार्जेस लगा है बिडर के ऊपर, क्योंकि ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, देयर इज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रेटनिंग टू द पब्लिक हेल्थ. ये दोनों कंडीशन में जो बिडर्स को डिबेयर किया जाएगा वो कितना साल के लिए, 3 years के लिए किया जाएगा. ठीक है, चलो नीचे में चलते हैं. ये सबसेक्शन आई मींस अभी हम जो डिस्कस किया, ए बिडर डिबेयर्ड अंडर सबसेक्शन आई और एनी सक्सेसर ऑफ द बिडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिडर और एनी सक्सेसर ऑफ द बिडर, बिडर का जो सक्सेसर है उसको भी डिबेयर किया जाएगा, उसको भी प्रिवेंट किया जाएगा, वो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding 3 years commencing from the date of debarment. जिस डेट में एक्चुअली डिबारमेंट ऑर्डर
जिस डेट में प्रिवेंशन ऑर्डर इश्यू होगा उसी डेट से हम 3 इयर्स को काउंट करेंगे। तो बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन आता है, इट मीन्स सपोज हाउ कैन वी काउंट द डिबारमेंट फॉर 3 इयर्स, इट इज नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ये जो दोनों कंडीशंस था, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एक देयर इज लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू द पब्लिक हेल्थ ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द बिडर, नहीं कि? तो इसमें बेसिकली जो बिडर है और उसका जो सक्सेसर ऑफ द बिडर, ओके, सो दिस shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding 3 years commencing from the date of debarment। थोड़ा मैं बता देता हूं, जिस डेट में डिबारमेंट ऑर्डर इशू होगा उसी डेट से हम काउंट कर लेंगे 3 इयर्स। ओके, तो ये जो डाटा है, यदि कोई बिडर को डिबार किया जाता है, कोई बिडर को प्रिवेंट किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स DGS&D, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, DGS&D, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसका एक लिस्ट वो भी डिस्प्ले करेगा उसका वेबसाइट में। और जो सेंट्रल, जो CPPP है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में भी ये जो बिडर्स को डिवेयर कर दिया गया वो भी मेंशन होगा, पब्लिश होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो करप्शन एक्ट 1988 और जो सेकंड कंडीशन था लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और थर्ड वन था कि डेट्रीमेंटली सपोज वेरी इट मींस एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स। ये कंडीशंस में जो पीरियड है डिबारमेंट का नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, तो इसमें मान लेंगे हम 3 इयर्स, और उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है DGS&D, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, और CPPP जो है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसमें भी पब्लिश होगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सक्सेसर, जो बिडर को डिबार किया जाएगा उसका सक्सेसर को भी डिबार किया जाएगा, उससे जो अलाइड है, उससे जो सपोज जो बिडर फार्म है उसके साथ, जिसके साथ उसका अलाइड सपोज फार्म है, उनको भी डिबार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, ए प्रोक्यूरिंग एंटिटी, सपोज एक प्रोक्यूरिंग एंटिटी को आएंगे, प्रोक्यूरिंग एंटिटी में डिबार ए बिडर और एनी ऑफ इट सक्सेसर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अंडरटेकन बाय इट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स। अच्छा, यहां पर जो है मेनली बेसिकली हम दो चीज के ऊपर वहां पर फोकस किया, करप्शन एक्ट, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, वही कंडीशन में 3 इयर्स के लिए बिडर को डिबार किया जाएगा। मगर और एक कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है, आप देखेंगे जनरल GFR का एक रूल है 175, वहां पर कुछ कोड ऑफ इंटीग्रिटी है। यदि कोड ऑफ इंटीग्रिटी कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी डिटेक्ट किया कि जो बिडर, बेसिकली एक बिडर जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया, तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करेगा मींस 2 इयर्स के लिए डिबार कर दिया जाएगा, तो वो बिडर को और उसका जो सक्सेसर है। तो आपको याद रखना है, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पर था 3 इयर्स 2 कंडीशंस में, करप्शन एक्ट और लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और जो एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। मगर ये में कोड ऑफ इंटीग्रिटी है। कोड ऑफ इंटीग्रिटी में क्या है, सपोज कुछ ब्राइब एक्सचेंज हुआ, बीडर क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए वो कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन किया, बीड को रिगिंग किया, ठीक है, और ऐसा कुछ स्टेप्स लिया जिसमें इट मींस नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, और ऐसा कुछ ऑफिशियल्स को ब्राइब देके वो इसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इन्फ्लुएंस किया कि, और कोई गवर्नमेंट एजेंसी को वो फॉल्स डिक्लेरेशन दिया था। तो ये सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी हम डिस्कस करेंगे GFR 175। तो जब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को वो ब्रीच करता है तो इसमें प्रोक्योरिंग एंटिटी को पता चल जाता है, वो 2 इयर्स के लिए उसको डिबार कर देगा, और इट्स सक्सेसर को, जो बिडर है और उसका सक्सेसर को 2 इयर्स के लिए डिबार कर देगा।
मगर जो 3 इयर्स के लिए था बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इयर्स 2 इयर्स आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। 3 इयर्स समझ में आ गया, मगर 2 इयर्स ओनली कोड ऑफ इंटीग्रिटी। कोड होता है, कोड ऑफ इंटीग्रिटी में GFR 175 में हम बात करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताया, चाहे बीड रिगिंग, चाहे एक्सचेंज ऑफ ब्राइब, की थ्रेटनिंग फॉर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि सपोज influence any official and suppose paying gift and paying huge amount of money and for taking contract, कि any false claim to any government agency in the past। ओके, तो ये जो चीज सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है, और यदि ये प्रोक्योरिंग एंटिटी को पता चल जाता है तो वो बिडर को 2 इयर्स के लिए डेबार कर देगा। वो 2 इयर्स के लिए प्रोक्योरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और उसका जो सक्सेसर है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस, 3 इयर्स और 2 इयर्स में। तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी में 2 इयर्स जो बिडर को प्रिवेंट किया जाएगा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और जो डेबार कर दिया जाएगा 2 इयर्स के लिए, ओनली ब्रीच द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, पूरा डिटेल्स में हम कोड ऑफ इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे GFR 175 में। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर बिडर को डेबार करने से पहले उसको मौका दिया जाएगा। ओके, द बिडर वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, ऐसा नहीं कि उसको इट मींस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। तो बिफोर डेबारमेंट ऑफ बिडर, बिफोर प्रिवेंशन ऑफ बिडर participating in procurement process, the bidder get reasonable opportunity to represent against such debarment। तो वो जो बिडर है उसको डिफेंड करने के लिए उसको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, इनफ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सडन डिसीजन ले लिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा क्यों आपको डेबार ना किया जाए, क्यों आपको प्रिवेंट ना किया जाए कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो वहां पर बिडर वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा उसको डिफेंड करने के लिए कि अगेंस्ट द डेबारमेंट ऑल्सो द बिडर विल गिव द रिप्रेजेंटेशन, एंड फॉर दैट रीजन द बिडर मस्ट गेट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम डेबारमेंट। ठीक है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चन जो आ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स करेक्ट वन और इनकरेक्ट वन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ गाइडलाइंस देखेंगे, गाइडलाइंस ऑन डेबारमेंट ऑफ फार्म्स फ्रॉम बिडिंग। जो गाइडलाइंस में हम 2 टाइप्स को जाएंगे। एक है सिंगल मिनिस्ट्री, इन केस वेयर डेबारमेंट इज प्रपोज टू बी लिमिटेड टू ए सिंगल मिनिस्ट्री। देखिए, द अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स कैन बी इशूड बाय दैट मिनिस्ट्री इटसेल्फ, thereby banning all its business dealing with the डेबार्ड फार्म। तो यहां पर ओनली एक सिंगल मिनिस्ट्री वो उसका बिडर को डेबार कर दिया तो वही ऑर्डर इशू करेगा, द सिंगल मिनिस्ट्री ऑर्डर इशू करेगा, नॉट अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज, ओनली द सिंगल मिनिस्ट्री। सपोज वो डिटेक्ट किया कि उसका एक बिडर सपोज कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया, तो उसको वो डेबार कर देगा 2 इयर्स के लिए। ठीक है, मगर ये सभी मिनिस्ट्रीज के लिए नहीं, वो सिंगल मिनिस्ट्री उसका जो वो बिडर को डिटेक्ट किया कि ये कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया है और उसको डेबार कर दिया जाए। और इसमें जो ऑर्डर इशू करेगा वही द सेम मिनिस्ट्री इटसेल्फ एक्चुअली इशू द ऑर्डर, एंड वो उसके साथ कोई भी बिजनेस डीलिंग नहीं रखेगा फ्यूचर में। ठीक है, और एक है सेकेंड गाइडलाइन है बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, दैट इज ए कवरिंग ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। इसमें क्या है, ऑल मिनिस्ट्रीज के लिए, ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए बिडर को डेबार कर दिया जाएगा। मगर इसमें क्या है, ऑर्डर कौन इश्यू करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, DOE ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वन मिनिस्ट्री इटसेल्फ, सपोज पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, सपोज होम मिनिस्ट्री है, वो डिटेक्ट किया है कि बिडर कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया, तो वो खुद वही मिनिस्ट्री ऑर्डर इश्यू करेगा और उसको डेबार कर देगा 2 इयर्स के लिए। मगर यदि ये डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वो डिसाइड करेगा कि ये जो बिडर को डेबार किया गया वो सभी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी मिनिस्ट्री में वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता फ्यूचर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर सिंगल मिनिस्ट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स,
तब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनल ऑर्डर निकालता है कि हाँ ये जो बिडर है उसको सभी मिनिस्ट्रीज और सभी डिपार्टमेंट्स में उसको डिबार कर दिया गया 2 इयर्स के लिए। वो बिडर कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी मिनिस्ट्री में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि उसका कोई सक्सेसर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज मींस ऑर्डर कौन इश्यू करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मगर जब सिंगल मिनिस्ट्री है तो सिंगल मिनिस्ट्री जो डिसाइड करता है वही खुद मिनिस्ट्री वो ऑर्डर इश्यू करता है, जो बिडर पर्टिकुलर बिडर को जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया उसको डिबार करने के लिए कि वो फ्यूचर में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि उसका सक्सेसर। मगर जब अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज का बात आएगा, अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स का बात आएगा, उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर लेता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। A bidder can be debarred for any actions or omissions by the bidder other than violation। ये तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है कॉमन। तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी के अलावा ऐसा क्या एक मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का ओपिनियन है जो बिडर को डिबार कर दिया जाएगा? एक तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी है। कोड ऑफ इंटीग्रिटी आपको अच्छे से बताया, चाहे बीड रिगिंग हो, चाहे मैनिपुलेशन हो, चाहे ब्राइब हो, एक्सचेंज ऑफ ब्राइब हो, चाहे थ्रेटनिंग for getting contract, creating non-competitive atmosphere in procurement process। समझ रहे हो? तो ये सब कोड ऑफ इंटीग्रिटी, जब कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोक्योरिंग एंटिटी क्या करेगा? वो बिडर को 2 इयर्स के लिए डिबार कर देगा और उसका सक्सेसर को। मगर ऐसे कोड ऑफ इंटीग्रिटी के अलावा और कुछ रीजन है। क्या है कि सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड मटेरियल, यदि बिडर पर्टिकुलर बिडर वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल सप्लाई कर रहा है, नॉन सप्लाई ऑफ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है टाइमली, और क्या है? अबैंडनमेंट ऑफ वर्क छोड़ दिया, काम नहीं कर रहा है, अबैंडनमेंट ऑफ वर्क्स, और काम कर रहा है तो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क्स, जो क्वालिटी ऑफ वर्क्स है वो सबस्टैंडर्ड है। ऐसा कुछ सबस्टैंडर्ड मटेरियल्स एक्चुअली द बिडर हैज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस, और जो बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन है उसको वायोलेट किया, उसको अवॉइड नहीं किया, तो ये सब कंडीशंस में भी बिडर को डिबार कर दिया जाएगा। वो प्रोक्योरिंग एंटिटी की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने वो बिडर को वो डिबार कर देगा 2 इयर्स के लिए, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में फ्यूचर में, और उसका कोई सक्सेसर। तो कोड ऑफ इंटीग्रिटी तो कॉमन है। कोड ऑफ इंटीग्रिटी के अलावा कुछ रीजन है, जैसे सप्लाइंग सबस्टैंडर्ड मटेरियल, नॉन सप्लाई ऑफ मटेरियल, अबैंडनमेंट ऑफ वर्क्स की सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क्स की जो बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन है उसको अवॉइड नहीं किया। ठीक है, ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बिडर को डिबार करने के लिए जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो एक ऑफिसर, इट मींस कौन सा रैंक का? एक ऑफिसर को नॉमिनेट करता है। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट में नॉमिनेट एन ऑफिसर। कौन ऑफिसर का जो रैंक होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी आज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिबार द फार्म्स। जो फार्म्स को डिबार किया जाएगा ना, जो कंसर्न डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है वो एक्चुअली नॉमिनेट करेगा एक ऑफिसर, जो ऑफिसर का रैंक होना चाहिए जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल। तो वो एक्चुअली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो फार्म्स को डिबार करेगा, चाहे ब्रीचिंग द कोड ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर रीजंस में जो बताया कि सप्लाइंग सबस्टैंडर्ड गुड्स, कि नॉन सप्लाई ऑफ गुड्स, कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, कि सपोज एनी जो बीड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन ऑल्सो द bidders actually they do not comply, कि they do not abide the bid securing declarations। तो ये सब चीज में, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंसर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसका सेक्रेटरी वो एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा। तो वो ऑफिसर का स्टेटस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल और एडिशनल सेक्रेटरी लेवल होना चाहिए और वो फार्म्स को डिबार करेगा। वैसे ही रिवोकेशन भी हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ द डिबारमेंट ऑर्डर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डिबार्ड पीरियड। सपोज अभी 2 इयर्स के लिए डिबार कर दिया गया है मगर बिफोर 2 इयर्स रिवोक भी कर दिया जाएगा विथ सर्टेन रीजन। the revocation also might be made before debarment period। Suppose debarment period is 2 years, so before 2 years also the revocation of debarment order
ओके, माइट बी मेड, और जस्टिफिकेशन देना है क्यों उसका जो डिपार्टमेंट है उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो जस्टिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। और उसको कौन करेगा? पर्टिकुलरली सेक्रेटरी करेगा, अप्रूवल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। आपको याद रखना है दो चीज यहां पर, जब डिबार कर दिया जाता है फार्म को, वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में अपकमिंग की सब्सिक्वेंट टाइम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वहां पर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री वो एक ऑफिसर को चूज करता है। वो जो ऑफिसर का स्टेटस एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होना चाहिए, तो वो फार्म को, उसके पास पावर होगा, वो फार्म को डिबार करेगा। मगर जब रिवोकेशन का बात आएगा, रिवोकेशन ऑफ डिबारमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिबारमेंट पीरियड, तो उसके इसमें जो रिवोकेशन ऑर्डर होगा वो किसका होगा? पर्टिकुलरली सेक्रेटरी, कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वन, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल मेंटेन लिस्ट ऑफ डिबेट फार्म्स व्हिच विल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन इट्स वेबसाइट। वेरी कॉमन है, यदि कोई मिनिस्ट्री और कोई डिपार्टमेंट कोई बिडर को डिबार करता है तो उसका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में डिस्प्ले करेगा कि ये बिडर्स को डिबार कर दिया गया इसी रीजन के कारण। और यहां पर और एक पॉइंट है, जो डिबारमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। मैं बताया अभी, जो डिबारमेंट है कुछ कंडीशन है, चाहे ब्रीचिंग ऑफ कोड ऑफ इंटीग्रिटी और एनी अदर रीजंस, the secretary of the concerned department or ministry nominate an officer and whose rank is additional secretary level or joint secretary level, and it means this one is the competent authority to debar the farms। तो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, इसमें कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, शुड नॉट बी अलोकेटेड टू विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। मैं आपको बताया, जो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है वो एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा, ऑफिसर का स्टेटस होना चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल में, उसका पावर है वो डिबार करेगा। कुछ रीजंस जैसे कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच कर दिया, और अदर रीजंस में बताया जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स वो सप्लाई कर रहा है, और वर्क अबंडनमेंट ऑफ वर्क की सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क की, जो बीड डिक्लेरेशन का जो सिक्योर पॉइंट्स था उसको वो अवॉइड नहीं कर रहा है, तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूडेड बिफोर द इश्यू ऑफ द डिबारमेंट ऑर्डर शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिबारमेंट ऑर्डर्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूडेड बिफोर द इश्यू, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है बिडर को, और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद सपोज डिबारमेंट ऑर्डर इश्यू होता है, तो इसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। जो एज यूजुअल वो एक्चुअली उसका जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो ऑफर करेगा, मगर नेक्स्ट ईयर में उसको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूडेड बिफोर द इश्यू ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्डर शैल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑर्डर्स। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, द डिपार्टमेंट शैल बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडेड टू ऑल इट्स अलाइड फार्म्स। जॉइंट वेंचर, सपोज एक जॉइंट वेंचर है, उसका जो भी पार्टनर्स है सबको डिबार कर दिया जाएगा, और वेबसाइट में भी उनका नाम भी पब्लिश किया जाएगा। डिबारमेंट ऑर्डर में भी पार्टनर्स का नाम रहेगा, द नेम्स ऑफ द पार्टनर्स शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द डिबारमेंट ऑर्डर। यदि कोई अलाइड फार्म से कि कोई जॉइंट वेंचर है उसमें पार्टनरशिप होता है, ओके, नंबर ऑफ गोटे ग्रुप ऑफ बिडर्स होते हैं, सबका नाम आ जाएगा डिबारमेंट ऑर्डर में। ठीक है, द नेम्स ऑफ द पार्टनर शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड इन द डिबारमेंट ऑर्डर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीरियड ऑफ डिबारमेंट जो है वो कब से इफेक्ट होगा, फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली द पीरियड ऑफ डिबारमेंट वुड बी इफेक्टेड। जिस डेट में डिबारमेंट ऑर्डर इश्यू होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबारमेंट ऑर्डर, तो पीरियड ऑफ डिबारमेंट साल स्टार्ट फ्रॉम द, आप बोलेंगे कि सपोज 2 इयर्स डिबार कर दिया गया, तो वो कब से 2 इयर्स हम काउंट करेंगे? जिस डेट में डिबारमेंट ऑर्डर इश्यू होगा उसी डेट से काउंट होगा। द पीरियड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीरियड ऑफ डिबारमेंट साल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबारमेंट ऑर्डर। और जो डिबारमेंट होगा मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए, 6 मंथ से कम नहीं होगा। डिबारमेंट को रिवोक कर दिया जा सकता है, द रिवोकेशन ऑफ डिबारमेंट ऑर्डर में भी टेकिंग प्लेस,
ओके, बट मिनिमम जो है डिवार्मेंट पीरियड रहेगा वो 6 मंथ्स रहेगा, नॉट शुड नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। तो मिनिमम जो रहेगा डिवार्मेंट पीरियड वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा, 6 मंथ्स रहेगा। ठीक है। और यदि शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप such departments may also hurt the interest of procuring entities. In such cases, endeavor should be to pragmatically analyze the circumstances, try to reform the supplier, and may get a written commitment from the supplier that its performance will improve. यदि एक शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, सप्लायर का शॉर्टेज है, तो इस केस में क्या होगा, सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज किया जाएगा और जो सप्लायर है उसको ट्राई किया जाएगा वो कैसे रिफॉर्म कर दे, जो भी पॉइंट्स में उसको डिवेयर किया जाएगा अभी डिसाइड हुआ है, मगर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लायर उसको चांस दिया जाएगा कि आप खुद को आप इंप्रूव कर लो, इसी ग्राउंड में आपको डिवेयर करने के लिए अभी डिसाइड हुआ था, मगर उसी एरिया में आप वर्कआउट करो और उसको थोड़ा इंप्रूव करो। यदि वो रिटर्न कमिटमेंट दे देता है कि मेरा ये जो एरिया है जो डिटेक्ट हुआ है कि मैं सब स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, कि मैं वर्क को अबैंडन कर दिया, कि इट मींस टाइमली एक्चुअली सपोज अनएबल टू सप्लाई द गुड्स, ये जो पॉइंट्स है कि जो भी कोड ऑफ इंटीग्रिटी को मैं ब्रीच किया, ये उसके ऊपर मैं सुधार लाऊंगा, रिफॉर्म लाऊंगा, वो एक रिटन कमिटमेंट दे देता है, तब उसका डिवार्मेंट, उस केस में डिवार्मेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो आता है शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स के बाद में आता है, तो उसके लिए उसको रिफॉर्म करने के लिए चांस मिलता है और वो रिटन कमिटमेंट भी देता है कि जिस एरिया डिटेक्ट हुआ है कि मुझे डिवार इट मींस किया जा सकता है, उसी एरिया में मैं रिफॉर्म लाऊंगा, ठीक है, और मैं इस एरिया में इंप्रूव करूंगा, ठीक है, तो मुझे डिवार ना किया जाए। तो ये शॉर्टेज ऑफ सप्लायर्स केस में। जेम में भी यदि बीडर्स कुछ कोड ऑफ इंटीग्रिटी को वायोलेट करता है और जो अदर है जो सब स्टैंडर्ड गुड्स सपोज सप्लाई करता है कि देयर इज नो टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि एनी सबस्टैंडर्ड वर्क, एनी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, कि सपोज वायोलेट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिडिंग, तो जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस था उसमें भी बीडर को 2 इयर्स के लिए प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको डिवार कर दिया जाएगा, ये भी यहां पर भी 2 इयर्स है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। सपोज मैं बोर्ड देता हूं कि और कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो एक फार्म को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में उसको भी डिवार किया जा सकता है। इट इज पॉसिबल दैट, you listen a sentence, it is possible that the farm may be divided concurrently by more than one ministry or department. Suppose more than one department की more than one ministry भी simultaneously एक बिडर को डिवार कर सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और यदि अक्रॉस मिनिस्ट्रीज का बात आता है कि सपोज सिंगल मिनिस्ट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल मिनिस्ट्री और सिंगल डिपार्टमेंट जब होता है वो खुद वो बिडर को ऑर्डर निकालता है और वो बिडर को डिवार कर देता है, मगर जब वो अक्रॉस मिनिस्ट्रीज और अक्रॉस डिपार्टमेंट्स का बात आएगा, अल्टीमेटली डिसीजन टेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यू नो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही फाइनल डिसीजन लेगा अक्रॉस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, कि कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी मिनिस्ट्री में दो पर्टिकुलर बिडर वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसको एनालाइज किया जाएगा, तो इनिशियली एक्चुअली आई थिंक प्रपोजल फॉरवर्ड किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर उसको एक इंटरिम पीरियड होता है, एक पीरियड सस्पेंशन मोड होता है, जैसे प्रिलिमिनरी हियरिंग होता है, और उसको एनालाइज करेगा और अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन लेगा कि ये बिडर कोई भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान देना है। ठीक है, राइट, चलो नेक्स्ट वन चलेंगे। रूल 152 का बात आ गया। जो रूल 151 था वो डिवार्मेंट ऑफ बिडर्स था, और ये जो रूल 52 आ गया
एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या है, सपोज कोई ऐसा कुछ फॉरेन फार्म वो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, और उसका कोई इंडियन एजेंट्स है, तो इंडियन एजेंट्स जो फॉरेन फार्म्स का जो इंडियन एजेंट है उनको भी एनलिस्ट किया जाएगा। जैसे मिनिस्ट्री एनलिस्ट कर सकता है और डिपार्टमेंट एनलिस्ट कर सकता है। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इफ दे सो रिक्वायर मे एनलिस्ट इंडियन एजेंट्स हु डिजायर टू कोट डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ देयर फॉरेन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एजेंट है, कोई इंडियन एजेंट है जो फॉरेन फार्म का इंडियन एजेंट, वो भी एनलिस्ट हो सकता है। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स दे कैन एनलिस्ट इंडियन एजेंट्स of the foreign farms and they can participate in also। वो जो इंडियन एजेंट है वो एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। तो एनलिस्टमेंट ऑफ इंडियन एजेंट्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 152। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 153, रिजर्व्ड आइटम्स एंड अदर परचेज और प्राइस प्रिफरेंस पॉलिसी। इसमें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन आता है जो सपोज देखिए हैंडलूम जो आइटम्स है, हैंडलूम आइटम्स जैसे हैंड स्पून एंड हैंड ओवन टेक्सटाइल्स, जैसे खद्दी गुड्स जो एक्सक्लूसिवली परचेज किया जाएगा केवीआईसी से, खद्दी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसमें बोल रहा है कोई डिपार्टमेंट सपोज कुछ हैंडलूम गुड्स चाहिए, उसको कुछ हैंड स्पून गुड चाहिए और हैंड ओवन टेक्सटाइल्स वो प्रोक्योर करना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट 20% हैंडलूम गुड्स को परचेज करना चाहिए, किससे, केवीआईसी से, खद्दी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये जो है क्वेश्चन आता है, तो कितना, एटलीस्ट 20%। तो अभी जो गवर्नमेंट नियम किया है कि बेसिकली जो हैंडलूम, हैंड स्पून, हैंड ओवन, ये जो गुड्स है, यदि कोई डिपार्टमेंट उसको प्रोक्योर करता है, कोई मिनिस्ट्री उसको प्रोक्योर करता है, तब एटलीस्ट 20%, मिनिमम 20% वो किससे खरीदना चाहिए, केवीआईसी से, खद्दी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एटलीस्ट 20%। और उसमें कुछ देखिए हैंडलूम क्लस्टर्स है, यहां पर देखिए केवीआईसी और हैंडलूम क्लस्टर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, प्रोड्यूसर कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, और जो वेवर्स उनका पहचान कार्ड है ये, तो ये सब आ जाते हैं। तो यदि कोई डिपार्टमेंट, यदि कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी, यदि कोई मिनिस्ट्री वो कुछ टेक्सटाइल गुड्स प्रोक्योर करना चाहता है, कुछ हैंडलूम गुड्स, कुछ हैंड स्पून, कुछ हैंड ओवन टेक्सटाइल्स वो प्रोक्योर करना चाहता है, तो एटलीस्ट 20% वो किससे प्रोक्योर करेगा, चाहे खद्दी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और कुछ हैंडलूम क्लस्टर्स है, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, प्रोड्यूसर कंपनीज है, कॉर्पोरेशन है, और कुछ वेवर्स को पहचान कार्ड मिला है, वो भी वेविंग मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 20% उनसे खरीदना है। और इसमें और एक मजा बात है, जो एमएसएमई का बात आ गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में क्या है, एक सेक्शन 11 आप देख लीजिए, उनका जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, सेक्शन 11 ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, उनका भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है। और अभी नाउ गवर्नमेंट एक्चुअली इट मींस प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन to the procuring entities or government departments or ministries की to procure goods from the MSME। तो उनका जो एक्ट है, जो डेवलपमेंट एक्ट है, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, और उसमें जो सेक्शन 11 है उसमें क्लियरली दिया है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसके हिसाब से MSME से प्रोक्योर करना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोकल मेड गुड्स है, जो लोकल एरिया में मैन्युफैक्चर होता है, तो उसको भी प्रिफरेंस देना है। यदि कोई लोकल गुड है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड है, उसको प्रिफरेंस देना है गवर्नमेंट एंटिटीज को, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को, उनसे प्रोक्योर किया जाए। तो ये जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रमोशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और लोकली प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनका प्रमोशन के लिए क्या है, यदि कोई प्रोक्योरिंग एंटिटी ऐसा गुड पर प्रोक्योर करना चाहता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको प्रोक्योर करना चाहता है, और वो गुड एक्चुअली एक लोकल मेड गुड है, और उसको प्रमोशन करने के लिए भी बेसिकली लोकल गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा।
तो ये तीनों पॉइंट आ जाता है जो रूल 153 है, ये रिजर्वेशन का बात आ जाता है। ठीक है, 154 आ गया विदाउट कोटेशन। आप जानते हो, तो विदाउट कोटेशन में आप जानते हो जो जेम में अभी एक रूल 100 आप देखा होगा, रूल 147 यही बोला था कि जो गुड्स जेम पोर्टल में है, गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ये मैंडेटरी उनके लिए है कि वो गुड वो जेम से खरीदना चाहिए, प्रोक्योर करना चाहिए। ठीक है, रूल 147 ये बोल रहा है यदि जेम में नहीं है, इफ द गुड इज नॉट अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल, देन फ्रॉम आउटसाइड। तो ये सब आउटसाइड का बात आएगा, क्योंकि अभी जो रूल 147 ये बोल रहा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटी की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री टू प्रोक्योर कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जेम पोर्टल। इफ इट इज नॉट अवेलेबल ऑन द जेम पोर्टल, देन यू गो टू द आउटसाइड। तो वही जेम पोर्टल में नहीं है, अभी हम आउटसाइड क्या आएंगे, यहां पर है विदाउट कोटेशन। और वैल्यू जो गुड्स हम प्रोक्योर करेंगे उसका वैल्यू अप टू 25,000, परचेज ऑफ गुड्स अप टू द वैल्यू ऑफ ₹25,000 विदाउट कोटेशन। आप कुछ गुड्स प्रोक्योर करना चाहते हो, उसका वैल्यू अप टू ₹25,000 है, तो विदाउट कोटेशन में हम उसको खरीद सकते हैं। मगर यहां पर एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा। आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट these goods purchased are of the requisite quality and specification and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable price। ये कैसे सर्टिफिकेट मेंशन होगा, यहां पर कोई कोटेशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द गुड्स है इट इज अप टू ₹25,000। तो इस केस में विदाउट कोटेशन होगा, मगर एक सर्टिफिकेट होगा कि सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होगा कि जो गुड्स को प्रोक्योर किया गया उसका क्वालिटी है, अच्छा है, और उसका स्पेसिफिकेशन से अच्छा है, एक रिलायबल सप्लायर से उसको परचेज किया गया है और रीजनेबल प्राइस में। इसे ये जो रेड पार्ट है ना, आप देख लो, एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ये विदाउट कोटेशन, ये जो एस्टिम, ये वैल्यू को याद रखो, अप टू द वैल्यू ऑफ ₹25,000 विदाउट कोटेशन। और जो रूल 155 है, ये है बाय परचेज कमिटी। रूल 155, परचेज ऑफ गुड्स बाय परचेज कमिटी। परचेज कमिटी में 3 मेंबर्स होते हैं। ओके, 3 मेंबर्स को रिकमेंड किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगा, बेसिकली यहां पर जेम पोर्टल में नहीं है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं जेम पोर्टल में नहीं है, आउटसाइड में, क्योंकि जेम पोर्टल में है मींस हम जेम से खरीदेंगे, ये मैंडेटरी है। तो यहां पर भी वैल्यू आ जाता है कि कास्टिंग अबोव, देखिए अबोव ₹25,000 एंड अप टू 2,50,000, यहां पर एलपीसी आ जाएगा, लोकल परचेज कमिटी आ जाएगा। 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। each occasion by made on the recommendations of a daily constituted LPC consisting of 3 members of an appropriate level as decided by the head of the department। तो head of the department 3 members को चूज करते हैं। तो LPC जो 3 members एक्चुअली वो एक मार्केट सर्वे करते हैं, मगर यहां पर जो एस्टिमेशन है अबव ₹25,000, जो गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा अबव ₹25,000 अप टू 2.5 लाख। इस केस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो एलपीसी जो चूज किया है, एलपीसी में 3 मेंबर्स होते हैं, एलपीसी में 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो मार्केट सर्वे करेंगे, डिटेल्स आप देख लीजिए यहां पर, वो मार्केट सर्वे करेंगे और कोटेशंस लाएंगे, और वो कोटेशन से वो पर्टिकुलर सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि कोटेशंस लाएंगे। तो बेसिकली द कमिटी विल सर्वे the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specifications and identify the appropriate supplier। तो कमिटी सर्वे करेगा और कोटेशंस लाएगा, और कोटेशन से वो ये सब कंपेयर करेगा, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस की अप्रोप्रिएट, सपोज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सप्लायर की रीजनेबल प्राइस, ये सब चेक करके अल्टीमेटली एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उससे वो प्रोक्योर किया जाएगा। तो यहां पर एक सर्टिफिकेट भी इश्यू होगा। तो यहां पर आपको याद रखिए जो कोटेशन आएगा मिनिमम 3 कोटेशंस। तो यहां पर याद रखिए जो कोटेशंस हम लाएंगे मार्केट सर्वे में, मिनिमम 3 कोटेशंस, ठीक है, मिनिमम 3 कोटेशंस। उसको फिर हम एनालाइज करेंगे, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, रीजनेबलनेस ऑफ प्राइस की अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सप्लायर, क्रीडेंशियल ऑफ सप्लायर, सब चेक करेंगे और अल्टीमेटली एक सप्लायर को डिटेक्ट करेंगे और उससे हम
गुड्स को परचेज करेंगे। मगर यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफाइड दैट वी मेंबर्स ऑफ द परचेज कमिटी आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली सर्टिफाइड दैट the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at the prevailing market rate, and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question, and it is not developed by Department of Commerce or Ministry or Department concerned। इसे एक सर्टिफिकेट इशू होता है। ये सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है आपको याद रखना है, ठीक है। ये एलपीसी हो गया, लोकल परचेज कमिटी। और यहां पर जो लोग एलपीसी का बाद जब आएगा, इट इज ग्रेटर देन जो वैल्यू ऑफ द गुड्स होगा ग्रेटर देन 2000 एंड इक्वल टू 2.5 लाख, 2.5 लाख इतना एस्टिमेशन में लोकल परचेज कमिटी, उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, वो मार्केट सर्वे करेंगे, एटलीस्ट 3 कोटेशंस लाएंगे, उसको एनालाइज किया जाएगा, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, रीजनेबलनेस ऑफ प्राइस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सप्लायर, क्रेडेंशियल ऑफ द सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी ऑफ द सप्लायर, फाइनेंशियल, सो ये सब चेक किया जाएगा और फाइनली एक सप्लायर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा और उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी इशू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 156 को डिलीट कर दिया गया है, रूल 156 और 157। तो यहां पर है कोई शुड नॉट बी ए डिमांड फॉर गुड्स शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज। जो पीस मिल परचेज नहीं होगा, कुछ पार्ट नहीं होगा। तो एक बार सपोज हमारा इतना डिमांड है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में कि कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी में, गवर्नमेंट एंटिटी में इतना गुड्स चाहिए, तो उसको हम पार्ट करके नहीं खरीदेंगे। डायरेक्टली हम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेके एक ही टाइम में हम उसको खरीद लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे। ये जो पीस मिल परचेज नहीं होगा, पार्ट परचेज नहीं होगा। तो ये रूल 157 बोल रहा है, डिमांड फॉर गुड्स शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीसफुल परचेजेस टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंक्शन। तो हायर अथॉरिटी से सैंक्शन ले जाना है और जो डिमांड है डिमांड के हिसाब से पूरा खरीद लेना है, ठीक है। पीसफुल परचेज को अवॉइड करना है, जो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ परचेज को अवॉइड करना है। तो ये रूल 157 है जो पीस मिल परचेज को अवॉइड करता है, ठीक है, रूल 157। 158 है कुछ स्टैंडर्ड मेथड से जो हम इट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ बिडिंग मेथड से, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मेथड से एक एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, सपोज जेम पोर्टल में नहीं है, ये सब जेम के अलावा, सपोज जेम पोर्टल में नहीं है तो हम इसमें आएंगे, ठीक है, क्योंकि रूल 147 वही बोला है कि यदि जेम पोर्टल में नहीं है तब हम आउटसाइड बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। और जो स्टैंडर्ड मेथड है वो बेसिकली 5 टाइप से, देखिए आप रूल इसके बाद डिस्कस करेंगे आगे में, जो थर्ड पार्ट में। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी जो है वो GFR आप देख लीजिए 161, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी GFR 162, 2 स्टेज बिडिंग GFR 164, सिंगल टेंडर GFR 166 और जो इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है वो GFR 167, इसको याद कर लीजिए। एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी GFR 161, लिमिटेड टेंडर GFR 162। इसके बाद एक 2 बीड सिस्टम है वो 163 में आता है। तो यहां पर देखिए 163 में ये नहीं है, इसमें एक 2 बीड सिस्टम है, वो स्टैंडर्ड मेथड में नहीं आता है। और 164 है 2 स्टेज बिडिंग। 165 में लेट बिडिंग होता है, एक 165 है वो लेट बिडिंग। लेट बिडिंग क्या है? एक बिडिंग सबमिशन डेट जो है, हम बीड इनवाइट किया, उसका एक लास्ट डेट होता है। लास्ट डेट के बाद यदि कोई चाहता है कि मैं बीड सबमिट करूंगा, नहीं होगा, लेट बीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 165 में है। 166 में सिंगल टेंडर इंक्वायरी है और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन GFR 167 में। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन एक आता है इसमें कि कितना स्टैंडर्ड मेथड है, ओके, जो जेम पोर्टल में नहीं है, हम आउटसाइड बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे, कि कितना स्टैंडर्ड मेथड है ऑब्टेनिंग बीड्स, तो वो 5 है, ठीक है। चलो ये डिस्कस किया गया है ये 158 में। अभी ई पब्लिशिंग को चलेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 159 ई पब्लिशिंग। It is mandatory for all ministries or departments of the central government, they are attached and subordinate offices and autonomous or statutory bodies, to publish their tender inquiries, corrigenda and details of bid awards। तो ये डिटेल्स होगा, जैसे आप बीड इनवाइट करोगे
तो आपको ई पब्लिश करना है, आपका वेबसाइट में पब्लिश करना है जो टेंडर इंक्वायरीज है, क्या क्या जो बिडर है। तो आप एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंटिटी ने वो बिड इनवाइट किया और वो क्लियरली मेंशन होगा उसका वेबसाइट में, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोरिजेंडा कोई कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ सपोज बिडिंग प्रोसेस में, तो वो कोरिजेंडा में आ जाएगा। और अल्टीमेटली जिसको अवार्ड दिया जाएगा, अल्टीमेटली एक सप्लायर को, एक फार्म को अवार्ड दे दिया जाएगा, उसका भी वेबसाइट में क्लियरली मेंशन होगा कि इसी सप्लायर और इसी बिडर को अल्टीमेटली अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और वो किसमें डिस्प्ले होगा? सेंट्रल पब्लिक CPP है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ये पूरा पब्लिश होगा। चाहे उसका वेबसाइट में जो गवर्नमेंट एंटिटी है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, चाहे उसका खुद का वेबसाइट में डिक्लेयर होगा, और CPP जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उसमें भी पब्लिश होगा। ठीक है। और ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाता है यहां पर, इंडिविजुअल केसेस वेयर कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिक्वायर्ड। सपोज कोई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर में ये पब्लिश नहीं होगा। सपोज अभी हम बीड इनवाइट करेंगे और रिलेटेड टू द गुड्स एक्चुअली रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो वो एक्चुअली पब्लिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मगर एग्जेम्पशन में क्या है? अप्रूवल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद द कॉन्करेंस ऑफ द कंसर्न फाइनेंस। तो दोनों, जो सेक्रेटरी है कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर वो डिपार्टमेंट का कि वो मिनिस्ट्री का, ये दोनों मिलकर, देखिए, सेक्रेटरी प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर, सेक्रेटरी प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? उसको अप्रूव करेंगे कि ये जो बेसिकली अभी हम बिडिंग इनवाइट किया कि कौन सा फार्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अल्टीमेटली फाइनली, ये सब पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि जो भी गुड्स प्रोक्योर करेंगे वो रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी है, वो बेसिकली हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर सेफ्टी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन आता है, यदि ऐसा कुछ चीज को ई पब्लिश नहीं किया जाएगा, जैसे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में पब्लिश नहीं किया जाएगा कि कौन सा सप्लायर को अवार्ड दिया गया, कि जब बीड इनवाइट किया गया, जो बीडिंग डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या ये सब जो बीडिंग रिक्वायरमेंट्स है, वो सब पब्लिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि इट इज रिलेटेड फॉर सेफ्टी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। तो ये जो अप्रूवल करेगा कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी प्लस फाइनेंशियल एडवाइजर। और ऑटोनोमस बॉडी में यदि कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर आ जाता है, इन केस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द बॉडी प्लस हेड ऑफ द फाइनेंस, ये दोनों, हेड ऑफ द बॉडी विद द कंकरेंस ऑफ द हेड ऑफ द फाइनेंस, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो बेसिकली हम जब बीड इनवाइट करेंगे वो पब्लिश नहीं होगा, कि जो अल्टीमेटली जो सप्लायर को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो भी पब्लिश नहीं होगा टू डिफेंड द नेशनल सिक्योरिटी। तो यहां पर ऑटोनोमस बॉडी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है कंकरेंस विथ हेड ऑफ द फाइनेंस। फॉर अदर केस में सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंकरेंस विथ फाइनेंशियल एडवाइजर। और जो ये जो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भी रहेगा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ केसेस, जैसे कितना केस जो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जो ई पब्लिश नहीं हुआ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में, इसको पब्लिश नहीं किया गया, तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। क्वार्टरली बेसिस में ये दे दिया, कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंटीमेटेड ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, ये देखिए, टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इंफॉर्म किया जाएगा, डीओई को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इंफॉर्म किया जाएगा क्वार्टरली, इट मींस एवरी 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, ठीक है, इंफॉर्म किया जाएगा कि इतना केस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया जो ई पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि टू डिफेंड द नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वार्टरली, और किसको इंफॉर्म किया जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, और यहां पर आप देख लीजिए, जो अबव इंस्ट्रक्शंस अप्लाई टू ऑल टेंडर इंक्वायरीज, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, रिक्वेस्ट फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट, notice for pre-qualification or registration or any other notice inviting bids or proposals in any form
whether they are advertised, issued or limited number of parties or to a single party, जो भी है ये सब पब्लिश होगा, चाहे एडवर्टाइज्ड टेंडर हो कि लिमिटेड टेंडर हो कि सिंगल पार्टी हो, पूरा डिटेल्स एक्चुअली वो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्लस जो गवर्नमेंट एंटिटी है उसका वेबसाइट में पब्लिश होगा। गवर्नमेंट एंटिटी का जो वेबसाइट है उसमें पब्लिश होगा, ठीक है, डिटेल्स पब्लिश होगा, राइट। और यहां पर देख लीजिए, मगर यहां पर जो ये जो हम एक देखें कोटेशन, जो परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन, ये रूल 154 था, विदाउट कोटेशन। विदाउट कोटेशन में क्या था ना, अप टू वैल्यू ऑफ द गुड्स अप टू ₹25,000, और एक था एलपीसी था। एलपीसी में क्या था, अबोव, एलपीसी में क्या था, अबोव 25,000 एंड अप टू 2.5 लाख, इसमें एलपीसी 3 मेंबर्स थे। तो ये सब पब्लिश नहीं होगा, ये चाहे गवर्नमेंट एंटिटी का खुद का वेबसाइट की सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जो विदाउट कोटेशन और कोटेशन जो एलपीसी है ये पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। और आज का लास्ट रूल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू को जाएंगे। ई प्रोक्योरमेंट रूल 160 है। ई प्रोक्योरमेंट क्या है, अभी आपको जब बीड इनवाइट कर रहे हो, पूरा बीडिंग डॉक्यूमेंट्स आपका वेबसाइट में अपलोड करना है। ओनली आपका वेबसाइट से बीडर्स डाउनलोड करेंगे और फिलअप करेंगे और फिर आपका वेबसाइट में अपलोड करेंगे। और एक जो हम बीड इनवाइट कर रहे हैं उसका एक ओपनिंग डेट है और एक लास्ट डेट है, बीड सबमिशन का एक लास्ट डेट होता है। मगर अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई प्रोक्योरमेंट मींस पूरा क्लियरली मेंशन होगा, जो भी बीडिंग डॉक्यूमेंट्स है हम कंसर्न प्रोक्योरिंग जो गवर्नमेंट एंटिटी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसका वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे। जो बीडर्स वो डाउनलोड करेगा फ्रीली और उसको फिलअप करेगा और फिलअप करेंगे करके फिर उसका वेबसाइट में उसको अपलोड करेगा। और यदि अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, बाद में क्लियर मेंशन होगा इसी सप्लायर को, इसी फार्म को अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो इट इज मैंडेटरी फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स टू रिसीव ऑल बीड्स थ्रू ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट्स। मैं बताया अभी, आप बीड इनवाइट कर रहे हो, पूरा बीडिंग डॉक्यूमेंट्स आपका वेबसाइट में अपलोड होगा, तो बीडर्स एक्चुअली दे कैन download the bidding documents, they fill it and again they upload it in your website, okay। और क्लियरली मेंशन होगा वेबसाइट में कि ये ओपनिंग डेट है, कि ये बिडिंग सबमिशन का लास्ट डेट है, कि ऑन दिस डेट एट दिस टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेस द बीड वुड बी ओपन। तो डेट, प्लेस, टाइम क्लियरली मेंशन होगा, इसी डेट में बीड ओपन होगा और ये प्रोसीजर्स रहेगा बीड ओपन का। तो अल्टीमेटली जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा उसका भी नाम पूरा वो पब्लिश होगा, ठीक है। मगर ऐसा कुछ है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स व्हिच डू नॉट हैव ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट और कैरी आउट प्रोक्योरमेंट रिक्वायर्ड ओनली फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ ऑफिसेस, ऐसे केस में कोई लार्ज ये नहीं है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट नहीं है और कभी कभी डे टू डे उनका जो ऑफिस को रन करने के लिए प्रोक्योरमेंट चाहिए, तो इस केस में वो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन जाएंगे डेवलप्ड बाय एनआईसी, ओके। ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन को जाएंगे डेवलप्ड बाय एनआईसी। तो ये किस केस में होगा, जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वो उनको लार्ज वॉल्यूम में प्रोक्योरमेंट नहीं करना है, ओनली डे टू डे ऑफिस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उनको प्रोक्योरमेंट्स, कैरी आउट प्रोक्योरमेंट्स चाहिए। तो इस केस में वो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन किसका यूज करेंगे, डेवलप्ड बाय एनआईसी, ठीक है। और अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में आइदर यूज ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन डेवलप्ड बाय एनआईसी और एनी अदर एजेंसी को वो दे सकते हैं, चाहे एनआईसी जो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन को डेवलप किया है उसको यूज कर सकते हैं और एनी अदर एजेंसी को कर सकते हैं। मगर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो डे टू डे ऑफिस चलाने के लिए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है और इसी केस में वो ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन किसका यूज करेगा, एनआईसी का, ठीक है। और यदि कोई ऐसा इंडिविजुअल केस है जो नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस डिमांड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में exempt such cases from e-procurement after seeking approval of concerned secretary and with concurrence of the financial advisors। तो इसमें सपोज नेशनल सिक्योरिटी कोई स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन है उसको डिफेंड करने के लिए उस केस में मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में exempt कर देता है कि जो भी
प्रोक्योरमेंट होगा वो बेसिकली पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉम तो वहां पर अप्रूव करेगा सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। वो ये करेंगे कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, और वहां पर क्लियरली मेंशन होगा ये ओपनिंग डेट है कि ये है, और ये प्रोसीजर से इसी क्राइटेरिया में एक्चुअली जो आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, वो पूरा डिटेल्स वेबसाइट में एक्चुअली होता है जो कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और प्रोक्योरिंग एंटिटी। मगर इस केस में कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड करने के लिए ये यहां पर ई प्रोक्योरमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। और यदि हम अब्रोड से प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो जैसे हम जो हमारा सपोज हम अमेरिका, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो अमेरिका का एम्बेसडर यहाँ पर है और हमारा एम्बेसडर यूएसए में है, तो वो बातचीत करेंगे, ठीक है। उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट्स वो एनालाइज करेंगे। मगर ये सब केस एक्चुअली ई प्रोक्योरमेंट में अलाउ नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ टेंडर्स फ्लोटेड बाय इंडियन मिशन अब्रोड, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में वही बताया। सपोज अभी हम ऐसे कुछ टेंडर्स फ्लोट कर रहे हैं और सपोज हम प्रोक्योर करना चाहते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका एम्बेसडर यहाँ पर है और हमारा एम्बेसडर यूएसए में है, तो दोनों के बीच में उनका जो वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और ये सब ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन में, जो ई प्रोक्योरमेंट में जो डिटेल्स होता है, जो वेबसाइट होता है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का, वहां पर डिटेल्स होता है कि जो क्या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का प्रोसीजर है, वो सब डिस्क्लोज नहीं होगा। तो इसमें भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ई में एग्जेम्प्ट सच केसेस फ्रॉम ई प्रोक्योरमेंट। तो ये 151 से 160 तक था। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं बोला था 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। लेट्स कंप्लीट। यहां पर दे दिया, इफ ए प्रोक्योरिंग एंटिटी डिटरमाइंस दैट द बिडर हैज ब्रीच्ड द कोड ऑफ इंटीग्रिटी, आ गया इट में debar a bidder or any of its successor from participating in any procurement process undertaken by it for a period। मैं बार बार बताया था, 2 केस में 3 years होता है, not exceeding 3 years। एक corruption act actually 1988, another one suppose supplier offer the goods and due to this actually there is loss of life, loss of property and adversely affect the health of the people। तो इस केस में जो मैं बताया था 151I में ये 2 कंडीशंस था, नॉट एक्सीडिंग 3 years वहां पर था। मगर कोड ऑफ इंटीग्रिटी में नॉट एक्सीडिंग 2 years, नॉट एक्सीडिंग 2 years कोड ऑफ इंटीग्रिटी और अदर कुछ है, सपोज सप्लाइंग सब स्टैंडर्ड गुड्स, और अदर कुछ रीजंस में बताया था, सप्लाइंग सब स्टैंडर्ड गुड्स, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क, अबैंडनमेंट ऑफ वर्क, नॉट डिलीवरी द गुड्स इन टाइम, कि वायोलेट द इट मींस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इस केस में नॉट एक्सीडिंग 2 years। मगर इसमें जो 151I में है 2 कंडीशंस, एक करप्शन और एक है मैं जो बताया लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब ये 3 नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन, आप GFR 154 देखिए, GFR 154 दिया है, विदाउट कोटेशन अप टू द वैल्यू ऑफ रुपीज अप टू 25,000 विदाउट कोटेशन। मगर ये आपको याद रखना है कि यदि जेम पोर्टल में अवेलेबल नहीं है एनी कमोडिटी और एनी सपोज गुड्स नॉट अवेलेबल ऑन द जेम, तब हम आउटसाइड को जाएंगे। और यहां पर जो एस्टिमेशन है अप टू ₹25,000, ओके, वैल्यू ऑफ गुड्स अप टू ₹25,000, तब हम विदाउट कोटेशन से खरीद सकते हैं मार्केट से। तो ये GFR 154 बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज ऑफ गुड्स विदाउट इनवाइटिंग कोटेशंस और बीड्स ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट इशू होगा to be recorded by the competent authority up to the certain has been given in GFR under rule 154 without quotation। GFR 154 देखिए, विदाउट कोटेशन से मार्केट से खरीदा जाएगा। एक सर्टिफिकेट इशू होगा कि जो गुड्स को परचेज किया गया उसका अच्छा क्वालिटी है, स्पेसिफिकेशन है,
कि जो सप्लायर है रिलायबल है और प्राइस रीजनेबल है, इसे सर्टिफिकेट में बोला था आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज ऑफ गुड्स on each occasion may be made on the recommendations of a Delhi constituted local purchase committee costing। तो LPC का बात आता है। लोकल परचेज कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, वो जाकर मार्केट सर्वे करेंगे। मार्केट यहाँ पर क्या होगा मैं बताया था, मार्केट सर्वे होगा और एटलीस्ट 3 कोटेशंस बुलाएंगे, एटलीस्ट 3 कोटेशंस लाएंगे। उसमें एनालाइज होगा, क्या क्या एनालाइज होगा, क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, रिलायबल सप्लायर, ये सब देखा जाएगा और अल्टीमेटली एक सप्लायर से उसको परचेज किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी मेंशन होगा। मगर ये केस में आप रूल GFR 155 देख लीजिए, एलपीसी के ऊपर है। ओके, इसमें जो वैल्यू है ग्रेटर देन, ये है वैल्यू ऑफ द गुड्स होगा ग्रेटर देन 25,000 टू 2.5 लाख बताया था। ओके, GFR 155 आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपको मिल गया अबव रुपीज 25,000 अप टू, सॉरी ये नहीं है, आंसर है डी, आंसर डी, अबव रुपीज 25,000 अप टू रुपीज 2.5 लाख। Question number 5, purchase of goods on each occasion may be made on the recommendations of a Delhi constituted LPC has been referred to in GFR under rule GFR 155 local purchase committee LPC। तो आंसर बिट सी। Question number 6, any authority competent to incur expenditure may sanction the purchase of goods required for use in public service in accordance with provisions given in the। सपोज अथॉरिटी कौन है जो एक्चुअली who has power to make expenditure and ultimately under whose authority the goods can be procured। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी देखिए 4 ऑप्शन है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस, RNP, GFR। तो बेसिकली डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। ओके, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स में क्लियरली मेंशन है कि एक अथॉरिटी को फाइनेंशियल पावर, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर दिया गया है और उसके पास एक्सपेंडिचर करने के लिए क्षमता है और वो पब्लिक सर्विस के लिए कितना गुड्स, एक्चुअली कितना क्वांटिटी का गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा वो डिसाइड करेगा, जो पब्लिक को सेटिस्फेक्शन किया जा सकता है। ये आंसर बिट ए है। क्वेश्चन नंबर 7, Dash should be exercised to preclude purchasing quantities in excess of requirement to avoid inventory carrying cost। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देख लीजिए, GFR 144, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। ओके, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया था, उसमें क्लियरली मेंशन है जितना क्वांटिटी हमको नीड है उतना ही हम प्रोक्योर करेंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा करने से क्या है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट होगा। तो इसमें केयर शुड बी एक्सरसाइज, केयर मींस कॉशन, यहां पर आंसर है बीटे कॉशन, इट मींस केयर शुड बी एक्सरसाइज। तो हम केयरफुली देखेंगे हमको कितना क्वांटिटी का गुड चाहिए। तो एक्सेस क्वांटिटी को हम अवॉइड करेंगे, एक्सेस क्वांटिटी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट लगेगा, इसको अब स्टॉक करेंगे और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो कॉशन केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिबारमेंट ऑफ ए बीडर अंडर सेक्शन 151I ऑफ GFR 2 years। ये गलत है, क्योंकि 151I में 2 कंडीशंस था, क्लियरली आप देख लीजिए। GFR 151 सबसेक्शन I, करप्शन एक्ट 1988, कोई बिडर करप्शन में इन्वॉल्व है और बिडर्स गुड्स को सप्लाई किया और उससे क्या हुआ, लॉस, लाइफ लॉस हुआ, प्रॉपर्टी लॉस हुआ और एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, इस केस में 3 years होता है। तो यहां पर 2 years दिया है, ये गलत है। और सेकेंड जो है, प्रोक्योरिंग एंटिटी में डेबार ए बिडर
may debar a bidder or any of its successors from participating in a procurement process undertaken by it for a period not exceeding 3 years if it determines that the bidder has breached the code of integrity. मैं बताया था code of integrity, breached the code of integrity or any other reasons, चाहे सप्लाइंग सबस्टैंडर्ड गुड्स की, अबैंडनमेंट ऑफ वर्क की, सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क कि नॉट डिलीवरी गुड्स इन टाइम, तो ये केस में 2 इयर्स होता है, मगर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स ये गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहां पर क्या है, एक्चुअली यहां पर 2 इयर्स होना चाहिए, यहां पर 2 इयर्स होना चाहिए, यहां पर 3 इयर्स होना चाहिए, मगर ये अलग अलग दे दिया। तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट नॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन 2 स्टेटमेंट्स गिवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे। इन लिस्ट ऑफ इंडियन एजेंट्स इज मेंशन्ड इन रूल 153 ऑफ जीएफआर 2017, ये गलत है। ये रूल 152 होना चाहिए, ये 152 होना चाहिए। जो इंडियन एजेंट्स है, जो गवर्नमेंट एंटिटीज है, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, कि मिनिस्ट्रीज है, वो गवर्नमेंट एजेंट्स जो है, जो इंडियन एजेंट्स है, जो फॉरेन फार्म का इंडियन एजेंट्स है, उनको भी एनलिस्ट कर सकते हैं और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो ये रूल 152 में है। रूल 158 of GFR states that demand for goods should not be divided into small quantities to make piecemeal purchase. अच्छा, piecemeal purchase means ये 158 नहीं है, ये 157 है piecemeal purchase। ये जो है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इंडियन एजेंट जो एनलिस्टमेंट होगा रूल 152 है, और यहां पर जो पीसमिल परचेज को अवॉइड किया जाएगा वो रूल 157 है। ठीक है, ये तो दोनों इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, while making a public procurement the description of the subject matter should contain which of the following? टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रहेगा, ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड ये नहीं रहेगा। जब कोई आप बीड इनवाइट करते हो, वहां पर आपका जो बीडिंग डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर ट्रेडमार्क गुड मुझे चाहिए, कि पर्टिकुलर ब्रांड नेम का गुड चाहिए, नो। क्वांटिटी ऑफ गुड्स ये भी मेंशन होगा। कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल, शेड्यूल क्या है, कब जो बीडिंग, जो बीड का ओपन डेट होगा, कब बीड सबमिशन का लास्ट डेट होगा, किस डेट में बीड ओपन किया जाएगा और अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। तो ये सब बीड कंप्लीट साइकिल होता है। मगर ये जो फंड आप देख लीजिए, ये जो है अगेन जीएफआर 144 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, मेरा फर्स्ट पार्ट जो एक्सीलेंट जीएफआर है, फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मगर इसमें जब आप बीड इनवाइट करते हो तो बीडिंग डॉक्यूमेंट में ये मेंशन नहीं करना है कि मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का गुड मुझे प्रोक्योर करना है, कि ये पर्टिकुलर ब्रांड का गुड को प्रोक्योर करना है। तो सेकेंड वाला एक्चुअली गलत है। 134 जो है ना करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बीड्स? आप में बताया था जीएफआर 158 को देखिए, 5 मेथड, जो स्टैंडर्ड मेथड्स था 5 था। 5 क्या था, एक एडवर्टाइज्ड, देखिए फर्स्ट वन एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी था, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी। सेकेंड था लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। थर्ड था 2 स्टेज बिडिंग, 2 स्टेज बिडिंग था नहीं की। और फोर्थ था सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी था। और जो फिफ्थ था इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन टूल, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। तो ये 5 मेथड था, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग, फोर्थ वन सिंगल टेंडर इंक्वायरी, और था लास्ट वन इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन। ये 5 स्टैंडर्ड मेथड्स था। ओके, यदि जेम जो रूल 147 बोला है, यदि गुड अवेलेबल नहीं है जेम पोर्टल में, तब हम बीड प्रोसेस में जाएंगे। जो बीड प्रोसेस में जब जाएंगे मेथड्स होता है 5 होता है, हमने डिस्कस किया अभी। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। An arrear claim of a government servant shall be settled by the DDU
ई प्रीफर्ड विद इन, आप देखिए आप कोई एरियर आपका है, आप क्लेम करते हो तो उसको 2 years के अंदर, एक्चुअली 2 years विद इन 2 years ऑफ इट्स बिकमिंग, तो 2 years के अंदर उसको सेटल कर दिया जाएगा। और पेमेंट कौन करेगा? डीडीओ। ओके, जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, वो एक्चुअली सेटल करेगा आपका एरियर को, मगर वो फाइनल हो जाना चाहिए विद इन 2 years यदि आप एरियर क्लेम किया है, एरियर क्लेम किया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 13. Who can allow the arrear claim of a government servant kept in abeyance for a period exceeding 2 years? Suppose आप एरियर क्लेम किया मगर एक्सीडिंग 2 years हो गया, तो यहां पर आपको कैसे क्लेम, आपको कैसे जो एरियर है वो वहां पर ये मैटर, जब यदि ग्रेटर देन 2 years हो गया, आपको एरियर मिलना चाहिए, आप क्लेम किया मगर ग्रेटर देन 2 years हो गया, अभी भी सेटल नहीं हुआ, तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जाएगा थ्रू आपका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फर्स्ट आप क्या करोगे, इसमें देखो ग्रेटर देन 2 years हो गया, आप एरियर क्लेम किया है, तो इस केस में आप जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी थ्रू अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैटर किसके पास जाएगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो कॉन्सिक्वेंस को एनालाइज करेगा, सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करेगा कि किस वजह से एक्चुअली वो जो एरियर क्लेम किया था वो 2 years के अंदर सेटल नहीं हो पाया और वो ज्यादा हो गया, मोर देन 2 years हो गया, क्या रीजन है? तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो इस केस में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एनालाइज करेगा और फिर वो सेटल करने के लिए आइदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर सकता है, और किसके थ्रू आया था? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को वो भी पावर दे सकता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कि आपको पावर दिया गया, आप सेटल कर सकते हो। तो दोनों है, आप देख लीजिए ये क्लियरली मेंशन है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, बोथ होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी, क्योंकि थ्रू अपॉइंटिंग अथॉरिटी आता है। आपको ग्रेटर देन जो 2 years हो गया, आपको आपका एरिया सेटल नहीं हुआ, तो आप थ्रू अपॉइंटिंग अथॉरिटी लेटर भेजोगे किसके पास? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पावर दे सकता है कि आप सेटल कर दो। तो दोनों हो सकता है, चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेटल कर दे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या करेगा? पावर दे देगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन गवर्नमेंट ई मार्केट? जेम में एक रजिस्टर्ड सप्लायर्स का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 1 to 3 years। उसके बाद उसका फ्रेश रिन्यू होगा, उसके बाद फ्रेश रिन्यू होगा। ठीक है, तो 1 to 3 years वही नॉर्मल जैसा है, 1 to 3 years है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 को चलेंगे। व्हेन विल द क्लेम्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू टीएडीए क्या बात आ गया? ऑन टूर ट्रांसफर ट्रेनिंग में स्टैंड फॉरफिटेड। आपको याद रखना है, यदि टीएडीए का बात आएगा ट्रेनिंग, टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर विदाउट एडवांस, आप एडवांस नहीं लिया है तो 60 days, विद इन 60 days आप देख लीजिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। इफ द क्लेम इज नॉट प्रीफर्ड विद इन 60 days, 60 days कैसे काउंट होगा? सपोज आप आज रिटर्न आ गए, हेडक्वार्टर आप ज्वाइन कर लिए, आपका हेडक्वार्टर ज्वाइन कर लिए, नेक्स्ट डे 60 days सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी। सपोज आज का डेट आप जर्नी कंप्लीट हो गया, आप आज जर्नी कंप्लीट हो गया मींस नेक्स्ट डे से काउंट होगा। तो 60 days के अंदर आपको क्लेम करना है, नहीं तो फॉरफिट हो जाएगा। और इसमें और एक जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो भी टीएडीए क्लेम करेगा। उसका सुपरएनुएशन हो गया, चाहे वो अभी उसका होम टाउन को जाएगा कि एनी अदर प्लेस को जाएगा, उसको भी टीएडीए क्लेम करेगा। मगर वो जो टीएडीए क्लेम करेगा विद इन 6 months, अभी 180 days विद इन रिटायर्ड के लिए विद इन 6 months और 180 days। और ये जो काउंट होगा बेसिकली हेडक्वार्टर टू होम टाउन, चाहे वो अदर प्लेस को चला गया। सपोज आप अभी जैसे गुवाहाटी में आप, सपोज आपका ऑफिस था, आपका होम टाउन कलकत्ता है, तो गुवाहाटी टू कलकत्ता ही मिलेगा। मगर अभी
आपका सुपरएनुएशन होने के बाद आप अभी चेन्नई चले गए, मगर आपको मिलेगा ही अप टू होम टाउन आपका कोलकाता तक, क्योंकि आपका होम टाउन कोलकाता है। और आप कहां पर काम कर रहे थे? गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में जो आपका सुपरएनुएशन हुआ, आपका होम टाउन कोलकाता में है, मगर अभी आप चेन्नई चले गए। रिटायरमेंट के बाद आप सामान फामान लेकर चेन्नई चले गए, तो आपको टीएडीए जो काउंट होगा वो किससे ना, गुवाहाटी टू कोलकाता ऐसे, मगर 6 मंथ्स के अंदर। तो जनरली आपको याद रखना है यहां पर जो टीएडीए टूर ट्रेनिंग ट्रांसफर में विद इन 60 डेज, मगर आप एडवांस लेते हो, आप एडवांस लेते हो तो विद इन 15 डेज, एडवांस में 15 डेज, एडवांस नहीं लेते हो तो 60 डेज। और ये जो 15 डेज कैसे, आज आपका जर्नी कंप्लीट हुआ कल से, और सिमिलरली आप एडवांस नहीं लिया 60 डेज, विद इन 60 डेज। और जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसका टीएडीए जो वो क्लेम करेगा 6 मंथ्स और 180 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ री ऑडिट? ये री ऑडिट का बात आ गया इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एरर्स इन क्लासिफिकेशन। एक बार ऑडिट हुआ, उसमें कुछ एरर्स था, तो इसको री ऑडिट कितना टाइम के बाद किया जाएगा? सपोज नाउ ऑडिट इज कंडक्टेड एंड सम ड्रॉबैक्स और सम शॉर्टकमिंग्स डिटेक्टेड, देन विद इन हाउ मेनी इयर्स अगेन री-ऑडिट विल बी कंडक्टेड? विद इन 3 years। री-ऑडिट जो होगा विद इन 3 years। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम व्हिच फाइनेंशियल ईयर रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट? रेलवे बजट जो जनरल बजट एक ही हो गया, पहले अलग अलग था। तो जो स्टार्ट हुआ ना 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में, इसी ईयर में रेलवे बजट ओके इंक्लूडेड व assimilated with general budget। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which fundamental principle is essential for an authority delegated with financial powers for procuring goods in the public interest? अगेन आप जीएफआर देख लीजिए 144, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायोलेट नहीं किया जाएगा, तो उसमें फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और सबको फेयरली ट्रीट किया जाएगा। कंपटीशन को प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ कंपटीशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सभी समय कंपटीशन को अलाउ किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस, आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस इज आंसर, ऑल आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, state the monetary limit up to which any loss of immovable property by fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority up to। आपको याद रखना है कोई इमूवेबल, सपोज इमूवेबल बिल्डिंग है कि कोई कम्युनिकेशन है, कोई आपका ट्रांसफार्मर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन की टावर है ना, ये जो कम्युनिकेशन सपोज आपका चाहे जियो की, रिलायंस की, बीएसएनएल इसका टावर है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है बिल्डिंग है, ये यदि लॉस होता है ड्यू टू फायर फ्लड एटसेट्रा, तो कितना अमाउंट तक सबऑर्डिनेट अथॉरिटी उसका हायर अथॉरिटी को, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा? अप टू ₹50,000। ठीक है, अप टू ₹50,000 आपको यहां पर याद रखना है। अप टू ₹50,000 सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन्फॉर्म टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। किंतु यदि ग्रेटर देन 50,000 हो जाता है, सपोज कोई ऐसा इमूवेबल प्रॉपर्टी में बताया, चाहे बिल्डिंग हो कि कोई कम्युनिकेशन, कोई टावर फावर आपका है, तो वो इमूवेबल है कि आपका ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर, ये सब केस में यदि फायर फ्लड में ये लॉस होता है और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है, तो ग्रेटर देन 50,000 है मीन्स यहां पर गवर्नमेंट को जाएगा, ग्रेटर देन 50,000 गवर्नमेंट को जाएगा थ्रू प्रॉपर चैनल, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। और अप टू 50,000 सबऑर्डिनेट अथॉरिटी किसको इन्फॉर्म करेगा? उसका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। यदि फायर फ्लड में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका लॉस होता है तो अप टू ₹50,000 सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इन्फॉर्म टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, मगर ग्रेटर देन 50,000 वंस इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपको मिल गया वो
subordinate authority inform to the next higher authority up to rupees 50,000. आज का लास्ट क्वेश्चन है, when shall overtime allowance OTA claims to stand forfeited if not submitted within. सपोज आपको कुछ ओवरटाइम अलाउंस मिलेगा, आप क्लेम करोगे तो कितना दिन के अंदर आपको क्लेम करना है, नहीं तो वो फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो ओवरटाइम अलाउंस आप क्लेम करोगे इफ नॉट सबमिटेड विद इन 60 days ऑफ द ड्यू डेट, विद इन 60 days, ड्यू डेट 60 days में आप नहीं करते हो तो वो फॉरफिट हो जाएगा ओवरटाइम अलाउंस, ठीक है। इफ नॉट सबमिटेड विद इन 60 days ऑफ द ड्यू डेट, आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये मेरा 20 क्वेश्चंस था और रूल जो है 151 to 160 में डिस्कस किया, 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया। तो प्लीज माय फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस। तो थर्ड पार्ट के लिए वेट कीजिए, थर्ड पार्ट में मैं आऊंगा GFR 161 to 170 और MCQ के साथ, और जो लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है मैं उसको ला रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है। So please subscribe my channel. Please subscribe my channel. Thank you and namaskar to all of you.